Also, all other members who have joined this virtual platform, I welcome you all on the behalf of BMA. जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज. It is requested you all please unmute yourself. Mute yourself. So we can continue with our program. So today is the 7th International Day of Yoga, and we are celebrating it virtually. It is our privilege at the platform of BMA. BMA, it is a very renowned platform of the Bhopal Management Association, which is associated with the All India Management Association, New Delhi. So it is a group of the eminent personalities of different entrepreneurs, different academicians, social workers, and very renowned personalities of the Bhopal, MP, or all over the India. And it has a very renowned name in the international level also. So under the BMA, there is a women enrichment group or the committee associated under the guidance of Madam Sumana Chatterjee. So it is our first program, and it's my privilege to being a host of this program. This is the virtual celebration of 7th International Yoga Day, on which I would like to share one poem ki why it is celebrated, because it is a very great in sense कि इसका बहुत ही महत्व है. योगा शब्द जो है वो युज से स्टार्ट हुआ है या युज से बना है, जो एक संस्कृत वर्ड है. योगा इट इज अवर इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर, जो 5000 सालों से हमारे जीवन शैली में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समाहित है. बट नाउ इट बिकम्स अ लेटेस्ट और द यंगेस्ट, मतलब मीन वी कैन से कि मॉडर्न ट्रेंड के फॉर्म में इमर्ज हो रहा है. सो वी शुड फील प्राउड कि इंटरनेशनली हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसको एक बहुत ही अच्छा स्थान दिलवाया कि योगा को आज पूरा वर्ल्ड, जो एक इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट था, उसे आज पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है. तो वी शुड थैंक टू अवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कि हमें उनके कारण आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि योगा को हम अपने इंडिया से लेकर पूरे वर्ल्ड में ले जा पा रहे हैं. सेकेंड थिंग इज दैट कि योगा डे का जो सेलिब्रेशन है, इट इज फॉर द अवेयरनेस ऑफ द टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, कि हम लोगों को ये बता सके कि योगा हमारी लाइफ को, हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनालिटीज को किस तरह अफेक्ट करता है. तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था और आई फील प्रिविलेज टू celebrate this virtual International Yoga Day at the platform of BMA. तो यहाँ पे मैं एक पोएम बोलना चाह रही हूँ जो योगा से रिलेटेड है और हम सबको बताएगी कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट. जिस शैली अब विशैली, आलस बड़ा व्याधि फैली, निरोग तभी मानव जाति, योगा करे कपाल भाती. स्मरण शक्ति बढ़ती बुद्धि, योग करता मन की शुद्धि, रहती सदा शुद्ध आत्मा, व्याधियों का करे जड़ से खात्मा. जन जो करे कर्म योगी, मनवा चंगा तन निरोगी. तनाव मुक्त मिले ऊर्जा, लगे न दाम ना ही खर्चा. योगी बनो भोगी नहीं, कहे पुराण वेदा यही. पतंजलि का योग सूत्र, सुखी जीवन का है यही मूल मंत्र. So this is the importance of Yoga Day. Now I would like to share one screen for the Yoga Day. I hope all you will enjoy this. Sir, is it visible to all? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Thank you, sir. Now, so it is the Yoga Day. Now I would formally welcome our dignitaries as a guest, Yogacharya Mamta Guruji, our chairman, Sir Honorable Mr. Pradeep Karambalkar ji,
our Honorable Vice Secretary, Sir, Ajay Kumar Verma ji, our Chairperson, Madam of Women Enrichment Committee, Madam Sumana Chatterjee, ma'am, our co-host, Dr. Aditya Gupta ji, and all other dignitaries who are present virtually on this platform. All other students, eminent personalities who are there, we welcome on the behalf of BMA, everyone. I feel very privileged as we know that कि हर Indian program या हमारा tradition है कि we celebrate every program with the prayer of Goddess Saraswati. So I should share one more screen, and I request you all to close your eyes and pray for the God for well-being of everyone. Thank you all. I hope Goddess Saraswati will bless us with the blessings of culture, art, music, health, wisdom, everything to all of us. Thank you so much for being with me. Now, continue with, I would like to introduce our Honorable Chairman, Sir, Pradeep, Sir. We are delighted to have such an eminent and energetic, enthusiastic, and gentle behavior personality with us as our leader of BMA, as a chairman who have a great visionary, optimistic thought, and very great personality and helping nature toward all of us. So, sir, I'm very welcome you all. Thanks, madam. Thank you, Dr. Kalpana, for my introduction. Please close this screen. Yes, sir. Please, yes, yeah, thank you. So, सभी को नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, और योगा की जगह हम योग कहें तो ज्यादा बेहतर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार सभी को, विशेष तौर पर योगाचार्य ममता गुरु जी को मैं वेलकम करता हूं मैम आपको इस प्लेटफॉर्म पे, भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के। मैं 12 साल पहले आपका विद्यार्थी था, आपके पत्रकार कॉलोनी स्थित वहां आता था, और आज सुबह भी उसी को मैं सबको बतला दूं कि एक बड़ा कठिन आसन था वो वज्रासन में बैठ के सिर पीछे लगाने का, और जब मैं पहली बार करने गया देखा भी मैंने, तो मुझे दिमाग में यही आया कि कमर उमर न टूट जाए मेरी। लेकिन विद द ट्रेनिंग ऑफ ग्रेट एमिनेंट पर्सनालिटीज लाइक ममता गुरु एंड सर के साथ हमने जब उसको किया, मैं आज भी उस आसन को कर लेता हूँ, अपना सिर वो पीछे लगाता हूँ, उसका नाम मुझे याद नहीं है, बट दैट आई हैव डन इन मॉर्निंग आल्सो। सो थैंक्स अगेन फॉर गिविंग दिस। और इससे मुझे एक चीज सीखने को मिली मैम, जिसको हम मैनेजमेंट थॉट कहते हैं, कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो शुरू में कठिन लगता है, अगर हम उसको थोड़ा शिद्दत के साथ और अच्छे मेंटर के साथ करें तो हम उसको कर सकते हैं और हम उसको सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे अर्थात एड मतलब जितने लोगों को इस संसार में कंट्रीब्यूट एम्पावर कर सकें, लोगों को जोड़ सकें, योग उसी का एक मैनेजमेंट का प्रोसेस है। और मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, आज बोलने का दिन है, करने का दिन है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी हियर एंड सी द लीजेंड ममता गुरु एंड पवन गुरु सर, जो कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है योग पर, और हम भोपाल वाले इस बारे में लकी हैं। एक चीज और मैं बीएमए के प्लेटफॉर्म से आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैडम से कि आपको जब भी कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन जब भी अपने सेशन शुरू करें, तो हम बीएमए के साथ, हम मैडम अपना माइक प्लीज बंद कर लीजिए। प्रदीप जी आप भी म्यूट हो गए।
सो मैं ममता गुरु मैडम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ ऐसा वो कार्यक्रम शुरू करें, सो हम बीएमए के साथ और वुमेन एनरिचमेंट कमिटी जो इस बार इतना शानदार शुरुआत कर रही है, और शुरुआत ही डिफरेंट हो गई है सरस्वती वंदना और डॉक्टर कल्पना के इतने शानदार उद्बोधन से। तो मैं चाहता हूँ कि बीएमए के साथ एक हम कोलैबोरेशन करें, बीएमए के मेंबर्स को आपकी तरफ से कमर्शियल कुछ डिस्काउंट्स हो या कुछ ऐसा चीज हो जिस पर बीएमए के मेंबर योग से हमेशा के लिए जुड़ सकें, आपकी क्लासेस से जुड़ सकें और हम अपने स्वास्थ्य में वृद्धि कर सकें। सो बीएमए कैन कोलैबोरेट विद योर ऑर्गेनाइजेशन एंड put yoga in BMA for all the people. So later on, maybe BMA meetings once a week, there is a yoga session in the morning. So with that note, I welcome you all and welcome Mamta Guru. कल्पना जी माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए कल्पना जी। Now I am audible. Hello. Yes, audible. Yes. Thank you so much, sir, for your kind words of appreciation. And now I would like to request Madam Sumana Chatterjee. She is the chairperson of our Women Enrichment Committee under BMA, which is associated with All India Management Association. So Madam Sumana, she is very kind, she is helpful, and she is very experienced personality as a leader of our women enrichment group, and we hope that definitely her experience will guide us to do something new, creative, and innovative in this group. So Madam Chatterjee, please blessings us with your words. Thank you so much, Dr. Kalpana. आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज योगा दिवस के अवसर पर आपने थोड़ी बात सुनी ली है, हम लोग मैडम को ज्यादा सुनना चाहेंगे, तो मैं छोटी सी एक बात आपसे शेयर करती हूँ। वुमेन एनरिचमेंट कमेटी का आरंभ कैसे हुआ? सबसे पहले हमारे चेयरमैन प्रदीप जी ने जनरल बॉडी मीटिंग जो कि 22/5 को हुई थी, उस जनरल बॉडी मीटिंग में उन्होंने इसकी बात की। उन्होंने जनरल बॉडी मीटिंग में सारी कमिटीज बनाई और ये वाली कमेटी का पेज खाली रखा। उसके बाद हम लोग प्रदीप जी के ही चेयरमैनशिप में फर्स्ट मीटिंग किए 28/5 को, 22 की मीटिंग के बाद 28/5 को। उसके पश्चात हम लोगों ने अपनी सब कमिटी फॉर्म की 12 जून को, और आज हम आप सबके समक्ष उपस्थित है आपका कार्यक्रम आज का कार्यक्रम लेकर। इसके लिए हमें रियली बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम इतना कर पाए। थैंक यू एवरीबडी फॉर देयर कोऑपरेशन ऑन दिस। मैडम आज की जो स्पीकर है उनके बारे में बोलने से पहले मैं एक शब्द और कहूंगी कि योग जो है वो हर तरह के अवसाद को दूर करने में पूर्ण कारगर है। 20 से 40 मिनट प्रतिदिन खर्च करें और पूरा दिन ऊर्जान्वित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आज के हमारे मुख्य स्पीकर योगाचार्य ममता गुरु जी का इंट्रोडक्शन आपको दूंगी। उनका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहूंगी कि मैडम योगाचार्य ममता गुरु जो है वो मेरे पूजनीय प्रिय चाचा जी स्वर्गीय कृष्ण मोहन गांगुली की शिष्या है। इस बात पे मुझे गर्व है कि उनका ही कार्यक्रम आज हम यहाँ कर रहे हैं। मैडम जो है वो डॉक्टर गांगुली योगा विद्यापीठ संस्थान और योग साधना रिसर्च सेंटर की चेयरपर्सन है। इसके अलावा वो हेल्थ एडवाइजर है सीआरपीएफ के लिए, प्लस वो योगा कंसल्टेंट है आकांक्षा योगा सेंटर में। उनको 5 नेशनल अवार्ड्स, 15 स्टेट अवार्ड्स और 20 अदर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1992 में उन्होंने योगा चैंपियनशिप भी जीती है। उन्होंने 6 बुक्स पब्लिश की है योगा पे। उस पर एक बुक है जो कि योगा का जादू है,
जिसको नेशनल अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा उन्होंने 1500 आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में लिखे हैं, 30 एपिसोड्स DD1 में किए हैं। उन्होंने आज तक 4,12,000 सेशन कंडक्ट किए हैं। 5 लाख से ऊपर उन्होंने लोगों को ट्रेन किया है। 62 योगा कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। पिछले 35 साल से मैडम 40 योगा क्लासेस का मार्गदर्शन करती हैं। इसके अतिरिक्त मैडम ने 12 ब्लड डोनेशन कैंप एनीमिक चिल्ड्रन के लिए स्पेशल किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, फ्री कोविड वर्कशॉप उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में कोविड पेशेंट्स के लिए किया है। एक ताली हो जाए मैडम के लिए। ऐसी ताली के अलावा वर्चुअल ताली भी हो जाए तो विल बी हैप्पी। अब मैं मैडम ममता गुरु योगाचार्य एवं डाइटिशियन को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने विचार व शब्द से हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपका जो BMA ग्रुप है सभी को देख करके वाकई में मैं मुस्कुरा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था सभी एनर्जी से भरे हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपका इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आपने आज मुझे आमंत्रित किया, मुझे आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं सभी BMA टीम को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। 7th इंटरनेशनल योगा डे में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये सिर्फ एक दिन, जैसा कि पहले ही योग का काफी अच्छा कविता भी सुन ली हम लोगों ने और बहुत अच्छा व्याख्यान भी, सबने अपने अपने जो विचार दिए बहुत ही बढ़िया सुने हम सभी ने। तो आगे मैं ये कहना चाहूंगी कि हम एक दिन ना करके हमें रोज ही अपने दिनचर्या में योग को सिर्फ प्लस कर लेना है। यदि हम योग और डाइट दो चीजों को अपने लाइफ में प्लस कर लेते हैं तो हमसे ज्यादा फिट और फाइन सुखी जीवन जीने वाला व्यक्ति दुनिया में कोई भी नहीं होगा। तो आइए आज हम अपना योग सेशन प्रारंभ करेंगे। कुछ टिप्स आपको मैं दूंगी जो आप, जैसे समय की पाबंदी सभी के पास रहती है, डेली रूटीन में समय निकालना भी मुश्किल होता है। वैसे तो जैसे पूर्व में कहा गया कि 40 मिनट हमें देना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। यदि हम 40 मिनट अपने आप को देते हैं तो अगले हम इस 1 घंटे से अगले 23 घंटे हम अपने शानदार गुजार सकते हैं। ये फिटनेस का फंडा है। लेकिन मान लीजिए उतना भी समय हमारे पास नहीं है तो हम ऑफिस में बैठ करके क्या कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के हम क्या कर सकते हैं, घर में हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ मैं टिप्स आपको दूंगी के बारे में। जैसा हम तो कपालभाति अनुलोम विलोम को भी कविता में सुन चुके हैं, तो मुझे लगता है कपालभाति अनुलोम विलोम से सभी लोग परिचित भी होंगे, लेकिन उसकी कुछ सही जो टेक्निक्स है वो भी मैं शॉर्ट में आपको बताती जाऊंगी। तो यदि हम योग को प्लस करते हैं तो हमसे शानदार कोई भी नहीं है, क्योंकि आप लोग तो मैनेजमेंट वाले हैं, वैसे भी जो फिट है वो हिट है। तो अगर हमको अपनी लाइफ को मैनेज करना आ जाएगा, अपने आप को फिट करना आ जाएगा, तो फिर हमारा मैनेजमेंट तो हर तरीके से हमारी लाइफ के लिए भी सुधर जाएगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपके जो प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसा कि सर ने बोला, मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की सेवा के लिए आप लोगों के लिए तत्पर हूँ। यदि मेरी किसी भी समय आपको कोई भी आवश्यकता हो, मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ और आज मैं आपके परिवार से मिल भी ली हूँ और हमेशा आपके लिए मैं सेवा के लिए तत्पर हूँ। योग और डाइट, हेल्थ से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं और पवन गुरुजी 2 जन आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो आइए मैं आज आपका अपना योग सेशन अपन शुरू करते हैं। तेजस्वी आ जाए। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये मेरी बिटिया है तेजस्वी। आप पे हमारे चैनल को देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि ये तेजस्वी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए दिखती हैं। मैं और गुरुजी भी आपको मिलते हैं। तो आज जब हम अपना योग सेशन प्रारंभ कर रहे हैं, सर्वप्रथम ज्ञान मुद्रा। थंब और इंडेक्स फिंगर को इस प्रकार से मिला लेंगे। ये
मुद्रा भी है, हमको आध्यात्म की ओर ले जाती है, मेंटल पीस, मन की शांति, क्रोध को शांत करना और हमारी एकाग्रता को बढ़ाना ज्ञान मुद्रा से हमें प्राप्त होता है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पीठ और गर्दन सीधी। सर्वप्रथम हम ओम के उच्चारण के साथ अपना सेशन प्रारंभ करेंगे। गहरी लंबी सांस और ओम का उच्चारण 5 बार। हरिओम तत्सत। ये 5 बार ओम का उच्चारण, 3 अक्षर से ओम बना है, अ, उ और मा। आपने उच्चारण ध्यान से सुना होगा। शुरू में अ, उ और मा को हम लंबा खींचते हैं, तो इससे जो वाइब्रेशंस होते हैं, मेंटल पीस, ध्यान, आध्यात्म की ओर हमको ले जाते हैं। और डेली रूटीन में जो टेंशन, जो नेगेटिव सिक्रीशंस बॉडी में होते हैं, जो नेगेटिव विचार या क्रोध, एंजाइटी हमारे को होती है रूटीन में, उसमें ये बहुत लाभदायक है। तो यदि आप नियमित 5 बार ओम का उच्चारण प्रातः कर लेंगे तो बहुत ही आप देखेंगे खुद ही बहुत एनर्जेटिक फील भी करेंगे और एक अच्छा आपको पॉजिटिव वाइब बॉडी में फील होंगी और माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। इसकी टेक्निक मैं सही तरीका आपको बताऊंगी। हो सकता है आप जब अभ्यास करते हो तो कहीं पर कोई आपकी टेक्निक गलत हो, तो यदि आप समझेंगे तो अपने आप करेक्शन इसको कर सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही हैं। अब हम करेंगे कपालभाति। सांस की प्रक्रिया, पेट अंदर, सांस को बाहर फेंकेंगे। आप देखते जाइए, पेट अंदर, सांस बाहर। इसको एक रिदम में करना है, इसकी एक स्पीड है। बहुत ज्यादा भी अभ्यास नहीं करना है, ना कोई झटका ना कोई जर्क। बहुत रिलैक्स होकर के शांत भाव के साथ, श्वास की सजगता के साथ यदि अभ्यास को किया जाए तो हमको लाभ भी पूरी तरह मिलता है। इसमें हमको हर बार सांस लेकर के फेंकना नहीं है, सिर्फ हमको सांस को फेंकने पर ध्यान देना है। प्रक्रिया देखिए, पेट अंदर और सांस बाहर। कहीं ताकत नहीं, कहीं बल का प्रयोग नहीं। कई लोग करते हैं तो कंधे उचकाते हैं या उनके गले पे या छाती पे बहुत जबरदस्त प्रेशर आता है, जर्क के संग कपालभाति का अभ्यास करते हैं। तो यदि इस प्रकार से अभ्यास किया जाता है तो कपालभाति के फायदे के साथ हमको नुकसान होता है, फायदा तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमको प्रक्रिया सही रखनी है। बेसिक चीज है, क्वालिटी को मेंटेन करना है, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है। यदि आप 10 राउंड भी सही प्रक्रिया से करते हैं तो उसका लाभ हमको निश्चित मिलता है। लेकिन अगर हम 400-500 राउंड कर रहे हैं और गलत तरीके से कर रहे हैं तो हमको नुकसान झेलना पड़ता है। बीपी शूट अप हो जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है, हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके से काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस गलत कपालभाति करने से हो सकते हैं। तो हमको प्रक्रिया सही, क्वालिटी मेंटेन और जर्क कहीं पर भी नहीं। अब कितना करना है? 5 मिनट सफिशिएंट है हमारे 24 घंटे के फिटनेस के लिए। 5 मिनट कपालभाति। अगली टेक्निक मैं बताने जा रही हूँ वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप सभी परिचित है, लेकिन फिर भी श्वास प्रक्रिया और कैसे हमको सजग होना है ये आपको इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी। अनुलोम विलोम का अभ्यास देखें। राइट हैंड यूज करें। हाथ को बहुत ऊंचा नहीं उठाना है, कहीं ताकत नहीं, कोई प्रेशर नहीं।
आप सीधे ना बैठ सकते हो, सपोर्ट से बैठ सकते हैं, पैर नहीं मोड़ सकते, पैर लंबे कर सकते हैं, चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। श्वास प्रक्रिया क्या है? लेफ्ट से हमको इनहेल करके अनुलोम विलोम का अभ्यास प्रारंभ करना है। राइट नॉस्ट्रिल ओपन करा, राइट से सांस को छोड़ दिया, फिर राइट से ही इनहेल किया और लेफ्ट से छोड़ा। दैट मीन्स जो नॉस्ट्रिल आप ओपन कर रहे हैं, पहले सांस को बाहर छोड़िए, फिर सांस को लीजिए। अब श्वास की प्रक्रिया क्या होगी? हर सांस आप गहरी और लंबी भरेंगे, हर सांस गहरी और लंबी बाहर छोड़ेंगे। इसमें कहीं कोई ताकत नहीं आएगी, कहीं कोई बल का प्रयोग नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। बहुत रिलैक्सिंग मूड से यदि आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो आप इतनी शांति महसूस करेंगे, इतने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कि आप जब श्वास पे सजग हो जाएंगे अनुलोम विलोम के दौरान, तो आपको पता ही नहीं चलेगा समय कितना गुजर गया। ये अनुलोम विलोम की खासियत है, क्योंकि इसका कारण है ब्रीदिंग। जो हम अपनी श्वास ले रहे हैं वो है प्राणवायु। जब प्राणवायु का संचार हमारे शरीर में हो रहा है तो ऑक्सीजन इनटेक बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लंग्स की बढ़ रही है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के हर एक छोटे सेल तक सर्कुलेट हो रहा है। तो जब ये सर्कुलेशन होगा तो अंतः शुद्धिकरण की प्रक्रिया अनुलोम विलोम के दौरान होगी। जब ये प्रक्रिया होगी तो हमारी इंटरनल इम्प्योरिटीज जो हैं वो क्लियर होंगी, जो हमारे फॉरेन मैटर्स हैं वो क्लियर होंगे। वो क्लियर कैसे होंगे? एक तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं उसके साथ में, हमारे यूरिन के साथ में, हमारे स्टूल के साथ में, हमारे पसीने के साथ में। तो योग का फायदा यही है, हमारी जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उसको ब्लैडर में कलेक्ट कर देता है, और जब आप योग के बाद में यूरिन पास करते हैं तो सारे फॉरेन मैटर्स क्लियर हो जाते हैं। तो हमारे अंतर शुद्धिकरण की प्रक्रिया, हमारी नस नाड़ियों का शुद्धिकरण, हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं, उनका शुद्धिकरण इस प्रक्रिया के दौरान हो जाता है। तो ये फायदे हैं अनुलोम विलोम के। साथ ही सभी प्रकार की बीमारियों में, इवन कोविड पेशेंट्स को जब हमने अनुलोम विलोम का अभ्यास कराया, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, ब्रेन में सर्कुलेशन भी प्रॉपर हो गया, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई, इम्प्योरिटीज क्लियर हुई और उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई। अब हम अगले प्राणायाम की ओर जाएंगे। ये प्राणायाम जो मैं करा रही हूँ इसका नाम है अग्नि सार। अग्नि सार, आप ध्यान से नाम को सुनिएगा। ये जिनका पेट बढ़ जाता है बैठे बैठे, उसमें भी लाभदायक है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि डाइजेशन से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, यानी जड़ जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा, उसका बोवल मूवमेंट प्रॉपर रहेगा, डाइजेशन हमारा प्रॉपर होगा, तो ना हमको शुगर होगी, ना हमारा पेट बढ़ेगा, हमारा मेटाबॉलिक रेट प्रॉपर होगा और एंजाइटी, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन सभी खत्म हो जाएंगे। तो आइए देखें अग्निसार का अभ्यास कैसे करना है। हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेंगे। गहरी सांस हमने ली, सांस ले करके रोक ली। रुकी हुई सांस में ही हमको पेट अंदर बाहर हिलाना है। या आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपका पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जब कोई भी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, आपका यदि पेट भरा है तो आप अभ्यास को न करें, 3 घंटे बाद कर सकते हैं। सांस गहरी ली, रोकी, रोकने के बाद पेट को जितनी बार बन सके 20, 30, 40, 50, 60 रुकी हुई सांस में उतना आप हिलाइए। आपका मेटाबॉलिक रेट प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि जब डल होता है मेटाबॉलिक रेट तो प्रॉब्लम बहुत सारी शरीर में बढ़ जाती हैं। मेटाबॉलिक रेट प्रॉपर है तो हम फिट और फाइन रहते हैं। ये मेटाबॉलिक रेट को दुरुस्त करने में और हमारे डाइजेशन को सुधारने में बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद सांस को पूरा बाहर छोड़ दिया। बाहर छोड़ने के बाद रोका, फिर रुकी हुई सांस में ही हमको पेट को वापस से हिलाना है। अब हमने सांस को छोड़ करके रोका है और रोकने के बाद पेट को हिलाया है। जब रोकने के बाद हम पेट हिला रहे हैं तो मसल पावर बढ़ रही है, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है और ये सारी इम्प्योरिटीज को क्लियर कर रहा है। करना कितना है, एक बार सांस लेकर रोककर जितनी बार आप पेट हिला सकते हैं कीजिए, फिर सांस छोड़कर रोककर जितनी बार पेट हिला सकते हो कीजिए। ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लिमिट में हम किसी भी अभ्यास को करते हैं तो फायदा होता है, जरूरत से ज्यादा करते हैं तो नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। बहुत शॉर्ट में अब हम अगले अभ्यास की ओर, वो है भ्रामरी प्राणायाम। उसको कैसे करना है देखिए, पंचमुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी का अभ्यास। ध्यान हमारा भ्रुकुटी के सेंटर में जो हमारा आज्ञा चक्र है, ओम का इमेजिनेशन करते हुए, ओम का दर्शन करते हुए गहरी सांस लेकर गुंजन के संग सांस को बाहर छोड़ना है। देखिए किस प्रकार से। to 20 राउंड, 30 राउंड, 50 राउंड। बिगिनिंग में आप कम से शुरू करें, अभ्यास होते होते आप इसको ज्यादा तक कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती है रात को, या मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, जल्दी थकान महसूस होती है, जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, या बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस बॉडी में हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल थायराइड, गायनिक प्रॉब्लम्स, या किसी भी प्रकार के टाइप से हार्मोनल डिसबैलेंसेस अगर बॉडी में है, नींद भी नहीं आती है, आप भ्रामरी का अभ्यास करिए। आपको मेंटल पीस के साथ आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, लंग्स की और हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, और हमारे हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करेगा। दूसरा, एक भ्रामरी प्राणायाम का बहुत ही मेडिकल साइंस जो प्रूफ कर चुकी है, जो इस पर रिसर्च हुआ है, वो आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जो हमारी, जैसे एक कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, लेकिन उसका एक मेन स्विच होता है। यदि वो मेन स्विच को ऑफ कर दिया जाए तो पूरी बिल्डिंग की बिजली गुल हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन एक्टिविटी कम हो जाती है या डिसबैलेंस हो जाती है, तो बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी का जो पावर हाउस है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पे है, और सेंटर में ये जो 2 पॉइंट्स हमारे जब मिलते हैं अंदर, इस बहुत बारीक धागे से मटर के दाने के बराबर ग्लैंड लटकती रहती है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ रही है, उसके सिक्रीशन बढ़ रहे हैं, उसके सिक्रीशन प्रॉपर हो रहे हैं, बॉडी का हार्मोनल बैलेंस मेंटेन हो रहा है, जिससे मेंटल फिजिकल हेल्थ हमको मिल रही है। जबरदस्त, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपका टेंशन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, आप मेंटली और फिजिकली फिट और फाइन हो जाएंगे। क्योंकि जो वाइब्रेशंस हैं, इसमें ब्रीदिंग के ड्यूरेशन को आप लॉन्ग करने का प्रयास करेंगे। सांस ली और छोड़ी, गहरी लंबी सांस ली और ज्यादा देर तक सांस छोड़कर जब हम वाइब्रेशंस करते हैं, गुंजन करते हैं, तो जो वाइब्रेशंस है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और उसके सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, जिससे हमको ये सारे लाभ मिलते हैं। टेंशन, प्रेशर छूमंतर हो जाएगा। अब हम अगले अभ्यास की ओर, ये हमारे कुछ बहुत जरूरी प्राणायाम जो फिटनेस के लिए आवश्यक है, वो अपन ने अभ्यास किए हैं। अगला मैं आपको बता रही हूँ कुछ मुद्राएं, छोटी छोटी सी मुद्राएं हैं। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं चेयर पे बैठकर या कहीं पर भी, तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। क्योंकि आज की डेट में मेंटल टेंशन बहुत हावी हो गया है, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये कुछ 2 मुद्राएं आपको बताऊंगी, इसका अभ्यास आप करेंगे तो आपके टेंशन और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वो क्या है? सर्वप्रथम हम करेंगे शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा का अभ्यास आप देखिए, थंब इनसाइड, होल्ड योर फिंगर, और जो हमारी 2 छोटी उंगली हैं आखिरी की, उनको हमने मिला लिया है इस प्रकार से। ये हमारा पिरामिड पोज, शक्ति मुद्रा। इस मुद्रा के दौरान हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बॉडी में सर्कुलेट हो पाती है। ये जो मैं मुद्राएं आपको बता रही हूँ, ये मैंने कोविड पेशेंट्स को भी कराई हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट उनमें भी मुझको देखने के लिए मिले हैं। और इसके अलावा ये मुद्रा करनी कितनी बार है?
3 से 4 बार आप दिन में दोहरा सकते हैं। आपसे जितनी देर बने, 4 मिनट 5 मिनट तक आप अभ्यास कर सकते हैं इसका एक बार में। इसके बाद अगला अभ्यास ये है प्राण मुद्रा। वो देखिए किस प्रकार से करना है। दोनों फिंगर्स हमने मिला ली हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, और बाकी की फिंगर्स सीधी हैं। ये है प्राण मुद्रा। मन चित्त विचारों के प्रवाह को सकारात्मकता में ले जाता है, आध्यात्म की ओर ले जाता है, मन शांत हो जाता है, हमारा तनाव खत्म हो जाता है। इस मुद्रा का अभ्यास आप चेयर पे बैठ करके भी कर सकते हैं। अब कुछ आसनों का अभ्यास हम करेंगे। यदि आपके बीच में कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, मैं उसके अनुसार भी आपको मैं बता सकती हूँ। नहीं तो मैं अपने अनुसार जो फिटनेस के लिए जरूरी है वो आपको मंत्र देती जाती हूँ और सारी डिजीजेस भी उसमें कवर हो जाएंगी। बेसिकली जैसे आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आप लैपटॉप मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, कंप्यूटर वर्क ज्यादा है, सिटिंग वर्क ज्यादा है, तो सर्वाइकल की दिक्कत या फिर बैक में स्वेलिंग आने की दिक्कत हो जाती है, या फिर बैक प्रॉब्लम, शैटिका की प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें तो मैं आगे कवर करूंगी। इन बिटवीन कोई क्वेश्चन हो तो भी बताइएगा। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। ये है बटरफ्लाई आसन। बहुत इजी पोज है, लेकिन उसको देखिए, बटरफ्लाई। इसको बहुत आनंद की अनुभूति के साथ भी हम अभ्यास कर सकते हैं। देखिए कैसा अभ्यास करना है। घुटनों को ऊपर नीचे, पैर बिल्कुल ढीले छोड़े हुए। जो ज्वाइंट्स की स्टिफनेस आ जाती है चेयर पे बैठने से, तो हमारा हिप ज्वाइंट सबसे बड़ा ज्वाइंट है बॉडी में, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, साथ ही पाम मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और बैकबोन को स्ट्रेंथ और पावर देने का काम बटरफ्लाई करता है। साथ ही ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा देखने में आता है, साथ ही गायनिक प्रॉब्लम्स और जो प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी ये बहुत लाभ पहुंचाता है। करना कितनी बार है? 30 to 50 टाइम्स हर दिन। एक दिन आप इसको अभ्यास रोज करेंगे। अगले अभ्यास की ओर। सूर्य नमस्कार आप लोग करते हैं या मैं बताऊं? सूर्य नमस्कार बताऊं? आप करते हैं, वेरी गुड। मतलब आज भी याद है आपको सूर्य नमस्कार, बढ़िया। तो मैं एक राउंड सूर्य नमस्कार का शॉर्टकट में बताती हूँ, सिर्फ पोस्चर्स के करेक्शन को आप देख लीजिएगा कि कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए सूर्य नमस्कार। सर्वप्रथम प्रार्थना की मुद्रा। सांस को आप ध्यान से सुनिएगा, इसको विद ब्रीथिंग बताऊंगी। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और पीछे झुकते समय सांस को रोक लिया। वापस आगे जब झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए 20 फिंगर्स इन अ लाइन। 20 फिंगर्स दोनों पैरों के, दोनों हाथों की उंगली एक लाइन में है। नेक्स्ट स्टेप, लेफ्ट लेग को लंबा पीछे ले जाएंगे, कंप्लीट स्ट्रेचिंग पोज है, सिर ऊपर। देन राइट भी पीछे ले जाएंगे। ये आ गया हमारा पर्वतासन का पोज, दृष्टि नाभि पर। उसके बाद वापस से दोनों घुटने और चिन टच करा है नीचे। ये है अष्टांग नमस्कार का पोज, सांस लेकर ऊपर उठे हैं। अगेन पर्वतासन की ओर, दृष्टि नाभि पर, एड़ी जमीन से टच। पोज को ध्यान से देखिए। लेफ्ट लेग पूरा फ्रंट में आ जाएगा, दोनों हाथों के बीच में, सिर ऊपर। ये वीरासन का पोज है। राइट लेग भी आगे ले आएंगे। पादहस्तासन, 20 फिंगर्स इन अ लाइन, सिर घुटने से लगा हुआ है। सांस लेकर वापस ऊपर उठे, पीछे झुके, सांस को कुछ सेकंड होल्ड और फिर प्रार्थना की मुद्रा में आ गए। 12 आसन का एक चक्र हुआ। इसी को मैं राइट लेग से आपको दोहरा के बताऊंगी, तो आपको और करेक्शन हो जाएगा आसन के नाम के साथ। प्रार्थना की मुद्रा, हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, वीरासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अगेन पर्वतासन,
वीरासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रार्थना की मुद्रा। बैठ जाए। तो जैसे ये हमने एक चक्र किया, बारासन का एक चक्र दोनों पैरों से दोहराया हमने। यदि हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास 4 से 5 राउंड प्रतिदिन आप करते हैं तो आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि ये जो 12 आसन का कॉम्बिनेशन है ये कंप्लीट स्ट्रेचिंग पोजेस हैं। बैकबोन, मेंटल हेल्थ, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे सारे जॉइंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यदि आपको कोई फ्रैक्चर है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या हार्ट में कोई इंजरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो फिर आप कंसल्टेशन में करें। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इसका अभ्यास करें। थायराइड, बीपी, लिवर की फंक्शनिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग, सर्वाइकल, बैकबोन, शाटिका, वर्टाइगो सभी में बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन यदि वर्टाइगो का अटैक आया हुआ है तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो अभ्यास आप नहीं करेंगे। आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो आप अभ्यास नहीं करेंगे। यदि ये कंडीशन किसी के साथ में है तो थोड़ी सी सावधानी रखें और कंसल्टेशन के बाद ही उनके अभ्यास को आप कीजिए, तो बेनिफिट मिलेगा आपको। अगला अभ्यास, कुछ मैं पोजेज आपको बता रही हूँ जो कि खड़े होकर के रहेंगे और जिनके अभ्यास से आप, जो मैं जैसा मैंने बताया ऑनलाइन का जमाना है तो बैकबोन पर बहुत लोड आता है, सर्वाइकल, शाटिका बहुत ज्यादा है और साथ ही हमको वजन भी कम करना है, पेट को भी कम करना है, तो वो अभ्यास मैं आपको खड़े होकर बताऊंगी। उससे पहले आपको एक अभ्यास बता रही हूँ, वो है भुजंगासन का, जो हमने अभी सूर्य नमस्कार में भी किया, लेकिन उसको एक बार और आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे बेनिफिट्स के लिए। तो पेट पर लेट जाएंगे, दोनों पैर मिले हुए हैं, हाथ कंधे के नीचे रखे हुए हैं, हथेली। सांस लेकर के पूरा ऊपर उठेंगे, सिर पूरा पीछे है। जब हम इस पोज में आ रहे हैं हमारा पेट पूरा स्ट्रेच हो रहा है, तो जो बेली फैट है उसको कम करने में हेल्पफुल है, साथ ही पूरी कंप्लीट बैकबोन के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि सर्वाइकल से टेल बोन तक हर एक वर्टिब्रा की इसमें एक्सरसाइज हो रही है, उनको स्ट्रेंथ मिल रही है, उनकी मसाज हो रही है, मसल पावर बढ़ रही है, साथ ही कंप्लीट स्ट्रेचिंग है। एब्डोमेन कंप्लीट स्ट्रेचिंग में है, बेली फैट भी कम होगा, मेटाबॉलिज्म भी आपका प्रॉपर होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है क्योंकि लंग्स पूरे इसमें एक्सपेंड हो रहे हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ऑक्सीजन पूरे डायफ्राम तक क्रॉस हो रही है, साथ ही हार्ट की मसल्स को पावर देने में ये आसन बहुत जबरदस्त बेनिफिट देता है। और क्योंकि कंप्यूटर का युग है, सभी कंप्यूटर लैपटॉप में वर्क करते हैं, जिसके कारण पोस्चर रॉन्ग हो जाता है, तो ये पोस्चर के करेक्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपका बैठे बैठे जो बैकबोन का पोस्चर रॉन्ग हो जाता है उसको करेक्शन के लिए जो आसन है वो ये है, और एक मार्जरी आसन भी होता है। अब इसी में एक चीज आपको दिखाऊंगी, टर्न, फेस को टर्न करके आपको पीछे अपनी एड़ी को देखना है। जब ये आप नेक को, बैकबोन को ट्विस्टिंग दे रहे हैं तो जो यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो जाता है, बैक में आपको गर्दन के पीछे स्वेलिंग आ जाती है और नेक मसल्स वीक हो जाती हैं, उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है। इसके बाद नेक्स्ट आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, वो है मार्जरी आसन, कैट पोज। तो वज्रासन में बैठ जाएंगे। हर आसन का एक मेजरमेंट है, यदि हम उससे करते हैं तो हमको बेनिफिट प्रॉपर मिलता है। दोनों घुटनों में 6 इंचेस का या 1 बालिश का गैप रखा है, कोहनी को घुटने से टच किया है, हाथ से एक स्टेप आगे आए हैं, ये इसका मेजरमेंट हो गया। अब बॉडी को पूरा हाथों पर बैलेंस कर लिया है। ब्रीदिंग क्या है, सिर ऊपर है, सांस ली, पीठ को पूरा नीचे प्रेस कर दिया है। जब सिर नीचे आ रहा है, चिन चेस्ट से टच और पीठ को देखिए पूरा ऊपर उठाया है, ये जो आर्क बन रहा है ये हमारी बैकबोन के करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ज्यादा देर बैठते हैं आपको बड़ा कंफर्टेबल लगता है रॉन्ग पोस्चर, तो लेकिन उसका करेक्शन इस आसन में हो जाता है और भुजंगासन में प्लस सूर्य नमस्कार। ये कुछ आसन ऐसे हैं कि यदि हम इनको करते हैं तो फिटनेस हमारी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल है वो ही ड्यूरेबल है। जहां बॉडी में स्टिफनेस आई वही कॉम्प्लिकेशंस आपके घर कर गए।
तो इनसे बचना है तो ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने वाले आसन हमको अभ्यास करना होंगे। मार्जरी आसन में हमारे पूरे 33 वर्टिब्रास की मसाज हो रही है, मसल्स की पावर बढ़ रही है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, साथ ही हमारे बैकबोन का करेक्शन हो रहा है, हमारे रॉन्ग पोस्चर्स की जो आदत बन गई है उसमें भी इसका करेक्शन हो रहा है। करना कितनी बार है? आप इसके 10 राउंड से स्टार्ट करके 30 राउंड तक कर सकते हैं। और देखिए बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। कभी भी आप दिमाग में जल्दबाजी लेकर के किसी भी आसन को या योग करने मत बैठिए। मानसिक रूप से शांत होइए। 2 मिनट बैठने के बाद आप अभ्यास शुरू करिए, फिर आप उसका लाभ देखिए कितना जबरदस्त मिलेगा आपको। रिलैक्स कर लेंगे तेजस से। अब कुछ खड़े होके स्लिमिंग पोज भी है और फिटनेस भी, क्योंकि दुबला होना है, सभी को वजन कम करना है, कहीं ना कहीं पर पेट भी कम करना है। तो ये कुछ आपको छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगी जो हमको बेली फैट भी कम करने में हेल्प देंगे और बॉडी की एनर्जी को बढ़ाने में भी मदद देंगे। कुछ स्टेप्स है, शॉर्ट में देख लीजिए। खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप किया हुआ है। राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे है, लेफ्ट हैंड पीछे से राइट शोल्डर पे है। टर्न करके अपोजिट हील देखना है। देखिए किस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉर्मल ब्रीदिंग में आप इसको कर सकते हैं। थोड़ी सी साइड बेंडिंग, हाथ को पीछे ले जाते हुए देखिए ये पूरी साइड स्ट्रेचिंग हो रही है। जब साइड स्ट्रेचिंग हो रही है तो हमारे जो टायर्ड्स है वो खत्म होते हैं, बेली फैट भी आपका खत्म होगा, फिटनेस बढ़ जाएगी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये भी 10 राउंड, लेफ्ट और राइट। बहुत आराम से देखिए, घुटने भी बैंड नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल सीधे, सिर्फ साइड बेंडिंग। इसी में नेक्स्ट हाथ ऐसे रख करके बॉडी को देखिए किस प्रकार से, साइड बेंडिंग, बहुत आराम से करना है। कंप्लीट साइड बेंडिंग हो रही है, लेफ्ट और राइट। अब ये आपने देख लिए छोटे छोटे से व्यायाम है। इसके बाद आपको बताऊंगी घुटनों में या जॉइंट्स में तकलीफ रहती है, बहुत देर बैठने से भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हमको क्या करना है, दोनों हाथ सामने कर लीजिए। अब धीरे धीरे आधा बैठेंगे और वापस से उठेंगे, इसको दोहराते जाएंगे 10 राउंड, इस प्रकार से बहुत आराम से। घुटने की जो लुब्रिकेशन है वो हो रहा है जॉइंट्स का, और मसल पावर बढ़ रही है, थाई मसल्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। थाई मसल्स के वीक होने से भी घुटनों में पेन आता है। तो यदि ये आसन हम करते हैं तो इससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। अगला आपको बताऊंगी जो हार्ट के लिए भी बेनिफिशियल है। अच्छा, हमारी बॉडी में हार्ट कितने होते हैं? आप लोग फिंगर से बता दें मुझे, मैं आपको सबको देख रही हूँ, मुझे फिंगर से बताएं। भाई साहब आपका दिख नहीं रहा है हाथ, मुझे थोड़ा सा साइड करें। एक नहीं है हमारी बॉडी में हार्ट, हमारी बॉडी में हार्ट तो 3 है। कैसे हैं? हमारी जो ये मसल्स है ना, यहाँ पर मिनी हार्ट है, जो ऊपर का हार्ट तो पंप करता है। यदि अगर हमारे मिनी मसल्स जो मिनी हार्ट है वो वर्क करना बंद कर दे तो हमारा ऊपर का हार्ट भी फेल हो जाएगा। तो इस आसन के दौरान हमको इस दोनों जो हमारे मिनी हार्ट है उनकी भी पावर बढ़ाने के लिए हमको इससे स्ट्रेंथ मिलती है, जो हमको वज्रासन में भी मिलती है। तो जब हमारे, क्योंकि जैसे एक टुल्लू पंप वर्क करता है, टुल्लू पंप का अगर जो पाइप ऊपर गया उसको हम नीचे छोड़ दें तो कितने फोर्स के साथ ब्लड सप्लाई हो जाए, पानी सप्लाई हो जाएगा, 4 टाइम्स उसका बढ़ जाएगा फ्लो। इसी प्रकार से हमारा जब हार्ट पंप करता है तो ब्रेन में सबसे कम सप्लाई करता है और लोअर पार्ट में ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत देर पैर लटका के बैठे तो स्वेलिंग आ जाती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि ब्लड कलेक्ट हो जाता है। तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारी जो मसल्स में यहाँ पर मिनी हार्ट्स हैं वो प्रॉपर वर्क करके अपवर्ड्स में ब्लड को फ्लो करते हैं, जो हमारे हार्ट में जाता है, प्यूरिफाई होता है, फिर वापस सर्कुलेट होता है, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड रहता है। तो आसन को आप देखिए और समझिए, दोनों हाथ ऐसे सामने,
घुटनों को उठा करके हथेली से टच करना है। लेकिन इसमें हम चीटिंग ये नहीं करेंगे कि हमने हाथ ही नीचे कर लिए, हाथ हमारे लेवल पर रहेंगे, पैर को उठाना है। जब हमने ये लिफ्टिंग करी है तो हमारे हार्ट की जो मिनी हार्ट है उनकी पावर बढ़ी है, उनका सर्कुलेशन बढ़ा है और उनकी मसल की पावर बढ़ रही है। तो जब ये करते हैं तो ये हम इसको बोलते हैं बाईपास आसन, हार्ट बाईपास आसन है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली रूटीन में करिए, 30 to 50 राउंड कर सकते हैं। यदि आप इंडिपेंडेंट खड़े होकर नहीं कर सकते, आप इसको दीवार के सपोर्ट से खड़े होकर के करिए तो भी आपको कंप्लीट बेनिफिट देगा। अब हम अगले अभ्यास की ओर, जैसा हमारा कमिटमेंट है कि हमको वेट भी कम करना है, तो अब ये आसन है दोनों पैरों का डिस्टेंस, त्रिकोणासन। दूर दूर कर लीजिए। इसमें पोस्चर को देखिएगा कैसे करना है। दोनों हाथों की पोजीशन देखिए और बॉडी को, अपर बॉडी को टर्न करते जाएंगे। इस प्रकार से कीजिए, 1 2 3। अब इसमें फेस को देखिए, ऊपर टर्न हो रहा है फेस, घुटने बिल्कुल सीधे हैं, बॉडी का पोस्चर देखिए, सिर्फ हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं अपर बॉडी की। इसको करना कितनी बार है? 50 टाइम। रूटीन में कर लीजिए। आप इसको बैठ करके भी कर सकते हैं, इसको खड़े होके भी कर सकते हैं, दोनों पोजेस को आप यूज कर सकते हैं। तो कमर भी दुबली हो जाएगी, जो हिप्स और वेस्ट पोर्शन बढ़ जाता है बैठे बैठे रहने से, या आप तो फिजिकल उतना नहीं कर पाते हैं, तो यदि कुछ शॉर्ट जो आपको आसन बताए हैं, हार्डली 10 to 12 मिनट्स लगेंगे करने में, और प्राणायाम करने में 10 से 12 मिनट लगेंगे या 15 मिनट लगेंगे। इतना अभ्यास आप हाफ एन आवर का 35 मिनट्स का कर लेते हैं तो बहुत सफिशिएंट है आपकी बॉडी को फिट और फाइन रखने के लिए। एक छोटा सा आसन आपको स्टेप और बता रही हूँ। दोनों पैर मिला लीजिए, साइड टर्न लीजिएगा, दोनों हाथ कमर पे। अब इसमें बॉडी को पीछे बैंड करना है सांस लेकर, और ये होल्ड कर लिया है, सांस रुकी हुई है। वापस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, सांस लेते हुए, सॉरी छोड़ते हुए पीछे जा रहे हैं। सांस लीजिए, रोकिए और छोड़ते हुए वापस आइए। 10 राउंड। यदि आप इसको कर लेते हैं तो जो आपको सर्वाइकल वर्टाइको की प्रॉब्लम है, नेक मसल्स आपकी बहुत कमजोर हो गई हैं, या आपको सोते नहीं बनता है, कभी लेफ्ट कंधे में पेन आ जाता है, कभी राइट में पेन आ जाता है, या बैक में कभी स्टिफनेस आ जाती है, या कोई नस आपकी चढ़ जाती है, इसको करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही जिसके फ्रंट हो जाए, दोनों हाथ रख लीजिए कॉलर बोन पर। अब कोहनी को मिलाते हुए पूरा ये सर्कल बनाएंगे। देखिए कैसे। अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा विद ब्रीदिंग। जब कोहनी मिला के हाथ उठाया है तो हमने सांस को लिया है, एक सांस में एक चक्र पूरा। अब इसके बेनिफिट क्या है? लंग्स पूरे एक्सपेंड हो रहे हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है हमारी, इससे हमारा इम्यून स्ट्रांग हो रहा है। साथ ही फ्रोजन शोल्डर की जिनको प्रॉब्लम रहती है या बैक में स्वेलिंग आ जाती है, वो भी इससे खत्म हो जाती है। आप इसको करके देखिए, बहुत फायदा है। 10 राउंड हमने क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज। आप इतना अभ्यास कर लेंगे तो आपके सब कुछ चीजें छूमंतर हो जाएंगी। तेजस्वी बैठ जाए। इसी कड़ी में अगला छोटा सा अभ्यास, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लिया, हाथों को पूरा ऊपर लेकर के गए। आप इसको बैठे बैठे भी चेयर पे कर सकते हैं। सिर के पीछे बैंड किया, देखिए सिर बिल्कुल सीधा है, फिर ऊपर स्ट्रेच किया और फिर दूसरी साइड बैंड किया, सिर के पीछे, फिंगर्स इंटरलॉक, ऊपर स्ट्रेच किया, सिर के पीछे इधर मोड़ा, फिर ऊपर स्ट्रेच किया और दूसरी तरफ। 10 राउंड सफिशिएंट है, आपके सर्वाइकल की दिक्कत खत्म हो जाएगी। जो आप माउस यूज करते हैं, जो आपका पोस्चर आता है जिससे पूरा हाथ पेन करता है या बैक में पेन आ जाता है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। आपको करके खुद ही फील हो गया होगा कि ये छोटे छोटे से व्यायाम बहुत बेनिफिशियल हैं। अब इसके साथ ही योग में बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत देर भी चर्चा करेंगे तो शायद समय ही कम पड़ जाएगा। कुछ टिप्स आपको मैं डाइट के दे देती हूँ शॉर्टकट में। न्यूट्रिशन कहता है कि हमको हल्का खाना खाना चाहिए। बहुत हैवी डाइट लेने से हमारी डाइजेशन पावर जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते जाते हैं।
तो न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में जो हमारा ब्रेकफास्ट है, कभी स्किप मत करिए, जरूर लीजिए ब्रेकफास्ट, बहुत शानदार लीजिए, मतलब 36 न्यूट्रिएंट्स का व्यंजन हमको ब्रेकफास्ट चाहिए। लंच भी हमारा शानदार होना चाहिए, लेकिन डिनर हमारा भिखारी की तरह होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो हमारा डिनर है हाई फाइब्रस, लो कैलोरीज होना चाहिए, और फैट कंटेंट नहीं हो तो भी चलेगा। मतलब जो हमको पकवान खाने हैं वो हम दिन में खा लें, लेकिन हम जो रात में है वो डिनर को बहुत हल्का कर दें। यदि ये फंडा हम अप्लाई करते हैं तो हम फिट और फाइन रहेंगे और सारी बीमारियां बाहर रहेंगी, हमसे बिल्कुल दूर रहेंगी। बीमारियों की एंट्री अगर आप योग कर रहे हैं और आपने अपने डाइट पैटर्न को सुधार लिया, आपने अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे परिवर्तन कर लिए अपने समय के अनुसार, तो आप फिट और फाइन जबरदस्त तरीके से रहेंगे। छोटा सा टिप डाइट के लिए, क्योंकि हमारा लेडीज विंग भी बहुत ज्यादा है और आजकल अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं बताऊंगी जो हमारे किचन में हमारा पूरा स्वास्थ्य है, हमारी पूरी हेल्थ हमारे किचन में अवेलेबल है, सिर्फ हम उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं। कारण हमारा एक छोटा सा एग्जांपल मसालदान का, सभी के घर में किचन में मसालदान बहुत होता ही है। अब उसमें क्या होता है, हल्दी, नमक, जीरा, मिर्ची, नमक, ये चीजें होती है, राई। अब इसी में मैं कुछ आपको करेक्शन बता रही हूँ। राई के संग पीली सरसों को मिक्स कर दीजिए, जीरे के संग कलौंजी को मिक्स कर दीजिए, मसालदान में मेथी दाने को भी स्थान दीजिए। यदि ये छोटे से करेक्शन आपने कर लिए, और हींग, छोटे से करेक्शन आपने कर लिए, जब आप राई डाल रहे हैं तो उसके संग आपकी पीली सरसों भी डल गई, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करेगी। इसके साथ ही कलौंजी, जब हम कलौंजी मिक्स कर देते हैं तो कलौंजी के न्यूट्रिएंट्स आपको पता ही इतने जबरदस्त हैं कि सारी बीमारियों में, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, हार्ट के लिए, हमारे डाइजेशन को प्रॉपर करने में और हमको डायबिटीज से बचाने में भी बहुत लाभदायक है। तो हमारी कलौंजी भी यूज हो गई। जॉइंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। मेथी दाना, थोड़े से मेथी दाना डाल दीजिए, आपकी एंजाइटी, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। बनानी तो वही सब्जी है, लेकिन हमने उसमें जब ये इंक्लूड कर दिया तो हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ गई। दूसरा, खाने के बीच में पानी मत पीजिए, वाटर इंटेक को बढ़ाइए, कम से कम 13 से 14 ग्लास पानी जरूर पीजिए, जिससे आपकी इम्प्योरिटीज को क्लियर होने में हेल्प मिले, क्योंकि 70% वाटर हमारी बॉडी में है। अगर हमारा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप अपना वाटर लेवल खुद चेक कर सकते हैं। जब आप यूरिन पास कर रहे हैं उसका कलर चेक करिए, अगर पेल येलो या येलो जा रहा है, आप तुरंत 2 ग्लास पानी पी लीजिए। यूरिन पानी की तरह क्लियर कलर होना चाहिए, तो हमारी इम्प्योरिटीज, दैट मीन्स हमारी बॉडी में इम्प्योरिटीज नहीं है। यदि यूरिन का कलर आपका गड़बड़ है तो आपकी इम्प्योरिटीज बॉडी में है, यूरिन आपका कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, केमिकल्स बढ़ रहे हैं, एसिड बढ़ रहा है, जिससे आपको माइग्रेन की और हार्ट प्रॉब्लम की, एसिडिटी की, एंजाइटी की, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ये सब शुरू हो जाएंगी और बीपी भी आपका बढ़ने लग जाएगा। तो बहुत मेन कॉज है वाटर का, साथ ही फाइबर्स का। अब मैं बोलूंगी फाइब्रस डाइट। अब फाइब्रस डाइट आपको क्या लेना है, छोटे छोटे एग्जाम्पल शॉर्ट में। अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज में आपके ब्रेन में सबसे पहले क्लिक हुआ होगा मूंग, मोठ और चना। ये छोड़ करके मैं आपको बता रही हूँ, वो अंकुरित आप इसमें इन्वॉल्व करिए। वो करिए मेथी दाना, गेहूं, मूंग, कुछ दाने मूंगफली के भीगे हुए और स्वीट कॉर्न, साथ ही कुछ हमारे सलाद के आइटम या कुछ आप फ्रूट उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व कर दीजिए, लेकिन ये 3 आइटम जरूरी हैं। मूंग, मेथी दाना और गेहूं। चना मैंने बोला ही नहीं है, क्योंकि चना एसिडिटी को बढ़ाता है। तो आप चने को, सिके हुआ चना जो फुटाने हम बोलते हैं, वो खाइए गुड़ के साथ, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ अगर आप चना खाएंगे तो आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, गैसेस फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। तो ये इस प्रकार का अंकुरित आप ब्रेकफास्ट में ले लीजिए। साथ ही सत्तू, उसको आप यूज करिए। इसके साथ ही लंच में कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, जैसे बहुत सारी दालें मिक्स करके, बहुत सारी सब्जियां मिक्स करके, जो सीजनल हो वो आप इन्वॉल्व करिए डाइट में। किसी भी मील को कभी स्किप मत करिए। इसके बाद ही मैंने आपको डिनर तो बता ही दिया, जो बहुत हल्का होना चाहिए। उसमें हर प्रकार के, आप जैसे ओट्स का चीला ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, दलिये की खिचड़ी ले सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल 3-4 प्रकार के दलिये मिला दीजिए, 3-4 प्रकार की दालें मिला दीजिए और सारी सब्जियां मिक्स कर दीजिए। बघार ही मत लगाइए, लेकिन मसाले पूरे डाल दीजिए आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। धनिया मिर्ची जो भी आपको चाहिए आप उसमें डाल सकते हैं। और हरे धनिये की लहसुन वाली चटनी के साथ आप उसको खाइए। कोकोनट मिल्क के टेट्रा पैक मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो टेट्रा पैक आप लिख करके फ्रिज में रख दीजिए। जब आप ये वाली खिचड़ी बनाएं तो थोड़ा सा आधा टेट्रा पैक का हाफ आप उसमें खिचड़ी में डाल दीजिए, क्योंकि कोकोनट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको अदर फूड आइटम्स में नहीं मिलते हैं। तो नारियल पानी, नारियल खाना और कोकोनट मिल्क इसका यूज करना आप अपने लाइफ में इसको भी प्लस कर दीजिए, अपने किचन में प्लस कर दीजिए। बहुत सारी हेल्थ आपको वहीं पर मिल जाएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आजकल मेन कॉज है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, बैड ही बढ़ता है। तो ये अगर हमको अपनी वैल्यूज को नॉर्मलाइज करना है तो इस प्रकार के डाइट टिप्स को हम थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, मट्ठा वगैरह पीना शुरू करें। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप देसी बन जाइए। अगर आप विदेशी बनेंगे तो ये सारे कोरोना तो कभी भी छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बड़ी जल्दी कैप्चर करेगा। देसी ही व्यक्ति इससे निपट सकता है। और आप योग करिए जो अपनी पुरानी पद्धति है, डाइट में चेंज कर दीजिए, इम्यून पावर बढ़ाइए। मैंने अभी ये जो कोरोना काल चल रहा है इसमें बहुत स्टडी किया। जो लोग नियमित योगाभ्यास कर रहे थे और हमारे कंसल्टेशन में थे, उनको योग के लोगों के साथ संपर्क में 4-4, 5-5 घंटे रहने के बाद भी उनको कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और योग को तो हम सब समझ ही चुके हैं कि योग करेंगे तो ही आने वाले जीवन में भी बच पाएंगे, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। अब कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए, या मुझे और कुछ बताना हो तो बताएं। थैंक यू सो मच मैम। मैडम ये आसन कितनी बार, ये वाला कितनी बार करना है? ये वाला मुद्रा आप 4 से 5 बार दिन में कर सकते हैं जी। शक्ति मुद्रा, पिरामिड पोज। हाँ, पिरामिड पोज ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। 4 से 5 बार दिन में। और ये दूसरी वाली भी 4 से 5 बार। हाँ, और ज्ञान मुद्रा तो हमारी ध्यान की है ही सही। ये हमारे मेंटल टेंशन को रिलैक्स करने में हेल्पफुल है। ये प्राण मुद्रा बताई थी मैंने, प्राण मुद्रा। और कुछ क्वेश्चन? मैडम मैं आपके साथ सूर्य नमस्कार छोड़ के बाकी तो कर लिया मैंने। वेरी गुड, मैं देख रही थी वैसे। मैं मेरी वाइफ लड़के को भी खड़ा किया था, मैंने कहा बढ़िया। जैसे अगर आप लोग चाहें, और आपने भी ऑफर दिया है कि अपन आपका जो पूरा मैनेजमेंट ग्रुप है, यदि आप कभी चाहें तो अपने पास व्यवस्था है, आपको हम ऑफलाइन भी यहाँ पर सेवा अपनी दे सकते हैं। हमारे पास WHO के पूरे हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं रूटीन में ही, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से। तो उस तरीके से भी आप ग्रुप वाइज भी यहाँ पर आप हमारी सेवा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Ma'am, there is one question from Dr. Sapna. What would be breathing pattern in Mudra Asan? जब हमने ये मुद्रा ली है पिरामिड पोज, सांस लेकर के ली है, और इसके दौरान हम डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते रहेंगे। गहरी सांसें भरेंगे मुद्राओं के साथ और गहरी सांसें छोड़ते रहेंगे। एक मुद्रा, जब आपने एक बार मुद्रा में आ गए हैं, 4 से 5 मिनट आप रहिए, और नहीं बनता है तो 2 मिनट रहिए, लेकिन ब्रीदिंग रहेगी डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। आई होप मैडम सपना को अपना आंसर मिल गया होगा। एंड एनीवन एल्स इफ दे वांट टू इंक्वायर एनीथिंग और दे आस्क टू, देन कैन। मैडम कपालभाति की थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, वो सांस जो आगे पीछे होती है ना, वो कैसे करनी होती है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एक सूर्य नमस्कार में सुधीर भार्गव जी पूछ रहे हैं कि एंजियोप्लास्टी कैन वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? 2 क्वेश्चन है। एंजियोप्लास्टी हुई है वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। दूसरा मेरा कपालभाति में जो अक्सर क्या है, सांस कैसे लेना, वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कपालभाति को सांस लेके करना ही नहीं है, पहली बात तो सिर्फ सांस फेंकने पर ध्यान देना है, क्योंकि जो शॉर्ट बीच का टाइम ड्यूरेशन होता है, ऑटोमेटिक इनहेल होता है। यदि हम गहरी सांस भरने के बाद कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो वो गलत पैटर्न में चला जाता है। सिर्फ सांस को फेंकिए। आप एक बार फिर से मुझको देख लीजिए, मैं बताती हूँ आपको।
ली नहीं है मैंने सांस, सिर्फ मैं सांस को फेंक रही हूँ एक रिदम में कंटिन्यू 5 मिनट तक। और दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ ऑडियो में गड़बड़ था, मुझे क्लियर सुनाई नहीं दिया है। इनकी हुई होती है, क्या वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी रिपोर्ट उनके जब हम सामने ही कराते हैं, कभी भी हम ये बोलेंगे ही नहीं आपका बीपी बढ़ गया है या आपको पेस मेकर लगा है, वॉल्व लगा हुआ है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो आप अपने आप से कोई भी एक्सपेरिमेंट को प्लीज मत करिए, कोई भी पर्सन हो। विदाउट ऑफलाइन आप हमारे सामने, आपकी रिपोर्ट को हम स्टडी करके ही आपको पूरा योग कराएंगे, पूरा मेडिकल कराएंगे, वैदिक योग कराएंगे, लेकिन अपने सामने। ऑनलाइन तो हम परमिशन ही नहीं देते हैं, क्योंकि कभी कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई दिक्कत किसी को हो जाए, या आसन ही करते दौरान बीपी आपका शूटअप हो जाए, गलत करें सही करें, बहुत इंपॉर्टेंट है सामने करें। कोई भी अगर ऐसा केस है तो वो कंसल्टेशन के बिना ना करें। मैम वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि यदि मॉर्निंग में स्किप हो जाए शेड्यूल कि योगा नहीं कर पाए हैं, तो क्या दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप शाम को कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ ये है कि आपको खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटे होना चाहिए। जैसे आपने लंच लिया, लंच के बाद आपको 3.5 आवर अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। आप इवनिंग में योग करिए। अभी रिसेंट रिसर्च हुए हैं, उसमें ये आया है सामने कि मॉर्निंग के बजाय इवनिंग में योग करना बहुत बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि कारण ये होता है डे स्पेंड हो चुका है, पूरा हौच पौच जो आपका दिमाग में हो जाता है, बॉडी में हो जाता है, सारी चीजें हो चुकने के बाद हेलो 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 हाँ जी, आई आवाज आई? जी जी। तो इवनिंग में करना बहुत बेनिफिशियल है, मॉर्निंग में टाइम नहीं है। कुछ जो मैंने आपको चेयर पे बैठ के बताया, यदि आपको कभी टायर्ड फील हो रहा हो, आप उन स्टेप कर सकते हैं और इवनिंग में करें, बहुत अच्छी बात है। Thank you so much. Definitely this session is very fantastic and informative, also beneficial. और I hope कि BMA में जितने लोग आज एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे वर्चुअली, तो वर्चुअली हम पूरा, मैडम ने बहुत ही इजी पैटर्न में आज की जो लाइफस्टाइल है, कोविड न्यू नॉर्मल के तहत जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और जो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहा है, तो ये आपके जो एक्सपर्ट टिप्स हैं डेफिनेटली हम सबकी लाइफस्टाइल को पॉजिटिव करने में, रिलैक्स करने में बेनिफिशियल रहेंगे। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मैडम जयश्री टू प्रोवाइड वोट ऑफ थैंक्स। Thank you, Kalpana ma'am. It is an honor to have been asked to offer the vote of thanks on the occasion of the International Yoga Day. योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अभ्यास करेंगे, जितने हम तत्पर रहेंगे, उतने ही हम उज्जवल होते रहेंगे, उतने ही हमारी चमक बढ़ती रहेगी। तो I take this occurrence to thank Mr. Pradeep Karambelkar, Chairman of BMA, Secretary, and the entire executive committee members of BMA, as well as Mr. Sumana Chatterjee, Chairman, Women Enrichment Committee, Dr. Kalpana, and the audience for excellent participation. I think everybody has got the opportunity to take home something, which even if we practice on a regular basis for 15 minutes, I think जितना हमने सीखा है उतना हमें मिलेगा। और इस पूरे 1 घंटे के सफर में जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया है, जिनको हम जितना भी धन्यवाद दें वो कम होगा। अतिशोक्ति भी होगी कि ममता गुरु ने, जो हमें योगाचार्य ने एक एक चीज बता के दिया, वो भी इतने सहज और आसान शब्दों में कि हम घर बैठ के अपने आप कर सकते हैं। जो हमारे मन में भ्रांतियां होती हैं, जो हमारे मन में शंकाएं होती है, ममता मैडम ने, गुरु ममता ने इतनी आसानी से बता के दिया है, ऐसा लग रहा था जैसे वो एक इतने मक्खन लगाने के, बहुत आराम से हम बहुत आराम से क्या कर सकते हैं। एंड द ऑडियंस, excellent participation, excellent doing by the audience.
a proficient sense of gratefulness to all participants, all women enrichment committee members who have been taken so nicely and so well organized program. Be it the first time is just the first step of the women enrichment committee. We have a long way to go and a long steps to take. हमारा कोटि कोटि धन्यवाद है योगाचार्य ममता गुरु मैडम, आपके ये छोटे छोटे से जो हमें ज्ञान दिए आपने, मुझे आशा है कि हम सभी सदस्य इसको निरंतर प्रयास करते रहेंगे और इसको करते रहेंगे ताकि हमारे खुद के स्वास्थ्य, हमारे खुद के सांस और हमारे खुद के पेट पे हम कंट्रोल कर सके। कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। Now it is the time to leave meeting, but with a note कि योगे कर्मेषु कुशलम, ये जो नोट है ये भगवत गीता के 2य अध्याय से एक श्लोक का छोटा सा पार्ट है, जिसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं कि यदि हम योग करें जीवन में प्रतिदिन तो हमारे सारे कार्य कुशल पूर्वक संपन्न होते हैं, और या हम इसका सेकंड मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि यदि हम सारे कार्यों को कुशल पूर्वक करते हैं तो वही योग है। So thank you so much everyone for being participated in this our first program of Women Enrichment Cell. So thanking you all. Thank you, Mamta ji. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Congratulations, Sumanna ji and whole. Thank you, Mamta madam, आपको